नमस्कार दोस्तों। आज हमारी क्लास 10th की मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में आपका स्वागत है। आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे इस वीडियो का आनंद उठाइए। ट्रायंगल ले लिया, दिस इज ए राइट ट्रायंगल एंड दिस इज राइट एट बी। ये जो राइट ट्रायंगल है उसका ये एंगल 90 डिग्री है, दैट इज बी। और ए हम यहां ले लेते हैं या फिर ए इसको यहां पे ले लेते हैं, ए बी सी। ये कहीं भी ले सकते हैं, कोई भी नाम कहीं भी ले सकते हैं, ये फिक्स नहीं है कि आप बी ही 90 डिग्री लेंगे। आप ए भी ले सकते हो, सी भी ले सकते हो। तो मैंने फिलहाल ए बी सी सीरियल में ले लिया, ए बी सी। ये आपका 90 डिग्री है और इस एंगल को भी हमने ए ले लिया। ये जो एंगल है दिस इज ऑल्सो एंगल ए। ओके, नाउ हियर इज द सम आइडेंटिटी। फर्स्ट वन इज आई वांट टू टेल यू दैट identities, here is identities, and these identities as first one sin square a plus cos square a equal to 1. This is the first identity. Okay, and you can write here any other angles also. You can write theta, sin square theta plus cos square theta equal to also 1. Now second identity, यहीं से आपकी कुछ और आइडेंटिटी बन जाएंगी, उसको भी मैं आपको अभी से बताता चलता हूं कि इसी से आपकी दो आइडेंटिटी और बनेंगी। वो आपकी हो जाएंगी 2 number, this is sin square a equal to 1 minus cos square a. What to do? Cos square a transpose to right hand side, then we will get new identity. Similarly, 3 number identity is cos square a equal to, this is 1 minus sin square a. Now you have to transpose sin square to right hand side, then you will get this new identity, and these identity you will use in the question. Now next one is identity number 4, that is sec square a minus tan square a equal to also 1. ये भी आइडेंटिटी है, यहाँ पे माइनस होता है और माइनस 10 होता है। और यहां से भी आपको दो आइडेंटिटी मिलेगी। तो देखिए वो क्या मिलेंगी। 5 नंबर आइडेंटिटी इज sec square a equal to transpose this tan square to right hand side, then you will get 1 plus tan square a. And now 6 number identities, when you transpose this sec square, तो क्या करेंगे, ये माइनस बच जाएगा तो हम माइनस 10 को उधर ट्रांसपोज करेंगे। when you transpose this negative tan square to right hand side, then you will get tan square positive, tan square a equal to, and transpose this 1 to left side, therefore you will get sec square a minus 1. इस आइडेंटिटी को थोड़ा समझिए, कंफ्यूज मत होना। ये नेगेटिव था तो मैंने नेगेटिव टर्म को ट्रांसपोज कर दिया, पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव मैंने लिख लिया। और 1 आपका पॉजिटिव है, इसे ट्रांसपोज करके लेफ्ट में ले आए तो 1 आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec square a minus 1। तो वही मैंने लिखा है। So this gives you to another identity which you use directly into the question. And next one identity is okay, ठीक है, okay. So dear, next one identity here is, that is 7 number, and 7 number identity is this is cosec square a minus cot square a
equal to once again 1. So here is once again minus, and this identities gives you another two identities. That is identity number 8 means cosec square a इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी मिलती जुलती आइडेंटिटी है, आप देखिए याद करने के लिए आपको आसानी रहेगी। और इसी तरह से अगर हम कॉट स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या करेंगे, इस कॉट का वैल्यू चाहिए तो 1 को ट्रांसपोज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए एंड माइनस 1. So this is the another new identity you will use in the question. So now dear, some more identities is also there. So next one is, here is tan equal to sin a upon cos a, and also tan a equal to 1 upon cot a. So this is the identity for tan a. Now next one is tan a equal to cot a, लिख देते हैं cot a equal to cos a upon sin a, and similarly cot a equal to, this is 1 upon tan a, because tan and cot these are the reciprocals to each other. तो tan a का वैल्यू cot के फॉर्म में होगा 1 upon cot a, और cot a का वैल्यू tan के फॉर्म में होगा 1 upon tan a, और tan a का वैल्यू sin cos के फॉर्म में होगा, sin न्यूमरेटर में रहेगा और cos डिनोमिनेटर में रहेगा। इसी तरह cot tan का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, कॉस नोमिनेटर में पहुंच जाएगा और साइन डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो गया। इसके साथ साथ न्यू आइडेंटिटी दैट इज कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, एंड सिमिलरली साइन ए इक्वल टू 1 upon cosec a, because these are reciprocal to each other. And similarly moving for sec a equal to 1 upon cos a, these are the reciprocal, and cos a equal to 1 upon sec a. So these are the identities which we used in the direct into the proof of the question. So you can write here the numbering, that is 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17. तो कुछ कहा आपने? तो इन आइडेंटिटीज को हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में यूज करेंगे, जिसको जो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में इसी आइडेंटिटी का आपसे प्रूफ पूछ दिया जाता है, दैट इज साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए 1, प्रूव इट, हाउ कैन यू प्रूव इट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इसे प्रूव कैसे करेंगे। ये सभी आइडेंटिटी जिस तरह से मैं आपको फर्स्ट आइडेंटिटी का प्रूफ बताऊंगा, वैसे ही आप सभी को प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो डियर, नाउ रिमूव दीज ऑल आइडेंटिटी। याद करने के लिए आसान रहेगा। मेन आइडेंटिटीज हियर आर 3, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एंड दिस इज द नेगेटिव फॉर्म। सेक पहले रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, और यहाँ पे कॉसेक पहले रहेगा, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस यहाँ रहेगा कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसी से आपकी ये आइडेंटिटीज बन जाएंगी। और यहाँ पे टेन साइन और कॉस की फॉर्म होगा, साइन कॉस ए, टेन 1 अपॉन कॉट ए। इसी तरह से आपके ये भी फॉर्मूले रहेंगे। तो चलिए इसका प्रूफ कैसे होता है अब वो हम लोग देखते हैं। सो जितने अच्छे तरीके से आप इन आइडेंटिटीज को याद करेंगे, याद रखेंगे, उतनी ही ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए इजी होगी, आसान होगी। तो आप इन आइडेंटिटीज को धीरे धीरे करके सब याद कर लीजिए और इन्हें डेली रिवाइज कीजिए। अगर आप डेली रिवाइज करोगे
तो ये आपको कभी फिर भूलेंगे नहीं, आपको एक बार याद हो गया तो फिर वो याद ही रहेंगे। क्योंकि अगर आप फ्यूचर में और मैथ्स पढ़ना चाहते हो, 11th में भी अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, तो आपको ये आइडेंटिटी वहाँ भी वर्क फंक्शन में आएंगी, तो इनका यूज वहाँ भी होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे ही इसे अच्छे से याद कर लें अगर, तो क्लास 10th में भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और 11th में तो मिलेगा। साइन ए, sin A equal to, you know that simple formula, that is Pandit Badri Prasad divide by, very nice। तो ये आपको याद हो गया। एक और फॉर्मूला है, आपने शायद वीडियो मैंने आपको जो भेजा था उसमें लिखा हुआ था, तो अगर आपने देखा होगा तो आप उसे भी जान सकेंगे कोई उसमें से। और इसी तरह से यहाँ पे इससे आप दूसरे फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा एंड डिवाइड बाई हिंदुस्तान हरा। हाँ, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन ए मीन्स परपेंडिकुलर, एंड यू नो दैट दिस इज द परपेंडिकुलर फॉर दिस एंगल ए एंड दिस इज द बेस। सो यू कैन राइट हियर P by H, and P by H means perpendicular means BC and divide by AB. Similarly, cos A equal to, cos means B by H. So B by H means you can write base means AB and upon, या फिर H A B लिखा है, A B नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, AC. This is the hypotenuse. Okay, hypotenuse is this one. So now this is the hypotenuse means AC, and you can write for tan A, that is tan A equal to, that is P by B, B by B, P means BC upon AB. Yes, तो दिस इज द थ्री वैल्यूज। नाउ यू कैन अप्लाई, बहुत आसान है इसका प्रूफ, लेकिन अगर आप इसे पढ़े नहीं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि ये प्रूफ कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, तो चलिए देखिए कैसे करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, okay, so by Pythagoras theorem you will use the AC square equal to AB square plus BC square, okay, and also you can write is AB square को आप बाद में लिख दो, BC बाद में लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, चाहे जैसे लिखे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय AC स्क्वायर इन बोथ साइड, हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर से दोनों पार्ट को डिवाइड करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट हियर, दैट इज AC स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर equal to BC square divide by AC square and plus AB square divide by AC square। मैंने क्या किया, AC square से बोथ पार्ट्स को डिवाइड कर लिया। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड में दिस इज, आपने इस तरह से लिख लिया BC square upon AC, AB by AC, okay। Now you can see here, that is BC upon AC, this is the value of sin A, and AB upon AC, this is the value of cos A। So you replace this, the value just inside of the bracket by sin A and the value just inside of second bracket by cos A, then you will get here, that is 1 equal to cosine and then sin A and then square plus cos A, and this is also whole square, and this is written as, that is sin square A
plus cos square A equal to 1. So this is the identity. This is the proved of this identity. So you can write hence proved for this. तो ये एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये आइडेंटिटी है, आप इसे प्रूव करिए। प्रूव द आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी भी नहीं लिखते हैं, सीधा लिखते हैं प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इस बार ये आइडेंटिटी पूछे जाने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि आपका बहुत पार्ट तो ट्रिग्नोमेट्री से हटा दिया है, तो हो सकता है ये आपको पूछ ले। तो अब आप देखिए कि ये तो फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई। अब सेकंड आइडेंटिटी में आपको, अगर मैं आपको बता दूं, सेकंड आइडेंटिटी भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं। बाकी के आप सेल्फ कर लीजिएगा, क्योंकि आप जैसे ही मैं बताऊंगा सेकंड आइडेंटिटी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे प्रूव करना है। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। तो देखिए आपको सेकंड आइडेंटिटी को किस तरह से प्रूव करना है वो आपको बता देते हैं। तो सेकंड आइडेंटिटी यहाँ से मैंने ये भी रिमूव कर लिया, ठीक है। When we start, second identity is sec square a minus tan square a equal to 1. So you will write here sec square a minus tan square a equal to 1. So required to prove this identity. So how can you prove this sec and tan? So dear, here one thing is need here, that you have to know the value of tan a, but next value is required, that is sec a. You will find first here the value of sec a. So you can write this sec a equal to, and you know that sine cos tan, and reciprocal of cos is known as sec. So this is h by b. H by b means hypotenuse, hypotenuse means AC, upon b means base, that is AB. Okay, so now you can start the proof in right triangle ABC by Pythagoras theorem, that is AC square equal to BC square plus AB square, and now you divide on dividing by AB square इन बोथ द साइड। अब आप किससे डिवाइड करोगे? ए बी से डिवाइड करोगे। तो आपको क्या मिलने वाला है? यस, यू कैन राइट दिस ए सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर एंड इक्वल टू बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर एंड अगेन ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर. So you can see that this AB square and AB square, this is the same things cancelled out, and you can write here 1 and plus, and this is you can write, otherwise you transpose this BC and AB into left side, so you can write this first term AC by AB, and this is right just into the single bracket, that is whole square, and when you transpose this to left side, so you will get minus BC by AB, right, just into the single bracket, so you will get here only equal to 1. Okay, now you observe here that is AC by AB. AC by AB, this is the value of which things? AC by AB, this is the sec A. So you replace this AC by AB by sec A, and this is the whole square, and then minus BC by AB, this is the tan A. So you replace this by tan A, and this is again whole square equal to 1. So now you can write this as just into the form sec square A minus tan square A equal to 1. So this is the proof of the second identity. तो इस तरह से आप second identity को भी प्रूव कर लेंगे. This is the proof of this second identity.
इसी तरह से अगर आपको थर्ड आइडेंटिटी प्रूव करना है तो आप उसको BC से डिवाइड करेंगे, ऑन डिवाइडिंग बाई BC स्क्वायर, देन यू विल गेट द थर्ड आइडेंटिटी। और अगर आपको ये भी प्रूव करना है tan A, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था, दैट इज tan A, यू कैन से हियर, मैं इसको अब रफ कर लेता हूं। अगर आपसे ये भी कह दिया जाए कि प्रूव इट, दैट इज tan A इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, तो वो तो बहुत आसान है, एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो tan A इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। So how can you prove? Yes, you can write this as dear. Yes, tan A equal to, this is tan A. Since you know that tan A equal to this is BC by AB, आप ये जो आइडेंटिटी है उसको इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है AC और AC कैंसिल हो गया, तो आपका जो बचेगा वो BC बाई AB, और यहाँ भी है BC बाई AB। व्हेन यू कंपेयर दीज टू इक्वेशन देन यू विल गेट tan A इक्वल टू sin A अपॉन cos A। इस तरह से भी कर सकते हैं और इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ध्यान देना। आप इसे इस फॉर्म में भी, नाउ यू कैन दिस ऑन, ओके ओके, तो चलिए इसको दोबारा से फिर से देख लीजिए। ऑन डिवाइडिंग बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय AC, देन बी गेट। तो आप देखिए इसको कैसे करना है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को AC से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, राइट हैंड में BC अपॉन AC, एंड डिवाइड बाई, यहाँ भी AC से डिवाइड करना है, सो AB डिवाइड बाई AC। और आप देखिए कि BC बाई AC किसका वैल्यू है, दिस इज साइन A, सो यू कैन राइट हियर साइन A, एंड AB बाई AC किसका वैल्यू है, cos A का, तो आप यहाँ लिख सकते हो cos A, एंड दिस इज लेफ्ट साइड इज tan A, देन यू कैन प्रूव दिस जस्ट लाइक दैट। इस तरह से ही आप इसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा मैंने अभी जो मीटिंग लैप हो गई थी उसमें बताया था कि आप यहाँ पे साइन ए का ये वैल्यू पुट कर दीजिए और कॉस ए का ये वैल्यू पुट करेंगे, तो AC और AC कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, BC बाई AB, और BC बाई AB क्या है, tan A है। तो ये दोनों साइड प्रूफ हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी का प्रूफ आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्रूफ आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, तो आप इसे अच्छे से एक एक बार अपनी कॉपी पे करके देखेंगे, क्योंकि ये प्रूफ मैंने जो होमवर्क आपको असाइनमेंट दिया है उसमें प्रूफ नहीं दिया है। तो आप इसे एक बार करके देखेंगे अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में लिख लेंगे, तो आपको याद भी रहेगा। हमेशा याद रखिए, पढ़ी हुई चीज, देखी हुई चीज ज्यादा, हाँ, ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहती है, लेकिन लिखी हुई चीज काफी दिनों तक याद रहती है। तो आप इसे एक बार अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। कुछ कह रहे थे? ओके, सो डियर, नाउ मूविंग फॉर एक्सरसाइज 8.4 अब हम स्टार्ट करते हैं, और 8.4 में देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन कैसे। हाँ बोलिए, आज क्या क्लियर नहीं आ रही है? नीलांश फिर से बोलिए। नीलांश फिर से बोलिए, क्या क्लियर नहीं आ रहा है? आप, आपकी आवाज, आप लोगों की भी आवाज मेरे पास कम आ रही है। चलिए देखते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं 8.4। वैसे टाइम तो आपका चेंज करोगी। सो वी विल राइट हियर क्वेश्चन नंबर 1, साइन ए
in term of cot A, ये आपको रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो चलो कैसे करोगे देखते हैं। आपको क्या करना है, यू विल राइट सिंस साइन ए इक्वल टू, you will use the first identity, sin A equal to 1 upon cosec A, this is the identity, आपने डायरेक्ट लिख लिया sin A equal to 1 upon cosec A, and again you can write this just like that, under root cosec square A। देखिए मैंने रूट लगा लिया और इस पे स्क्वायर लगा दिया, सो नथिंग चेंज हियर इन दिस स्टेप, कुछ भी नहीं चेंज हुआ क्योंकि कॉसिक स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉसिक ए ही होगा, सो वी कैन राइट इट, ओके नो प्रॉब्लम। बट यू नो दैट सिंस what you know that cosec square A इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज द आइडेंटिटी। मैंने आपको आइडेंटिटी नंबर 7-8 जो लिखवाया था उसमें ये लिखवाया था, कॉसिक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सो यू रिप्लेस दिस कॉसिक स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सो व्हाट यू विल गेट हियर, दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए and this is sin A in the left hand side। तो आप देख सकते हो कि sin A चेंज होके cot के फॉर्म में आ गया और यही आपका आंसर है, यही आपको करना था, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसे cot के फॉर्म में चेंज करना है। अब ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही लिखा है इसलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, बिकॉज 1 जस्ट इंक्लूडिंग इनटू द कॉट स्क्वायर ए, ये पूरा एक टर्म है और इस एक टर्म का आप स्क्वायर रूट नहीं ले सकते। क्या क्यों नहीं ले सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर आप समझ लीजिए तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सी हियर अंडर रूट 9 प्लस 16, 9 प्लस 16, तो आप सोचो कि 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, तो आंसर आ गया 7, है ना। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3 और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4, टोटल हो गया 7 आंसर। और यहाँ पे देखिए 9 और 16 को ऐड करिए तो 25 होगा और 25 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 5, तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 7 आ गया, एक ही क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते, मतलब यहां पर आप इसका अलग अलग स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, यू विल कंबाइंड इट, आप इसे कंबाइंड करोगे तभी इसका स्क्वायर रूट आएगा, नहीं तो आप इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, तो ये गलत है। तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर रूट 1, कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉट नहीं लिख सकते, दोनों को प्लस करके जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट अगर मिल रहा है तो वो हम ले सकते हैं, इस चीज को याद रखेंगे आप, कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं इसलिए ये चीज मैंने आपको बताई। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान देना, कन्वर्ट, नेक्स्ट वन इज कन्वर्ट sec A इनटू द टर्म ऑफ cot A, तो दूसरा पार्ट है sec A इन टर्म ऑफ cot A, इसको भी cot के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए इसे कैसे करोगे, बहुत आसानी से कर पाओगे अगर आपको आइडेंटिटीज याद है। तो आप जानते हो सिंस sec A इक्वल टू रूट ओवर sec स्क्वायर A, अगर आप चाहो तो इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, रूट लगा दिया और स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब आप देखो कि आप एक आइडेंटिटी जानते हो कि अभी मैंने जो आपको आइडेंटिटी बताई थी वो आइडेंटिटी थी आपकी सिंस sec स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो इस आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे, वी विल रिप्लेस हियर दिस sec A बाई 1 plus tan square A, so what you will get here, therefore sec A equal to under root and replace this sec square A by 1 plus tan square A, so हमने यहाँ पे फिर से लिख दिया। अब यहाँ फिर वही गलती नहीं करेंगे
कि 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, 10 का स्क्वायर रूट 10 होगा, गलत। कंबाइंड का स्क्वायर रूट अगर मिल रहा है तो ही लिखेंगे, तो मिल नहीं रहा है। तो आप देखिए इसे कन्वर्ट तो कॉट में करना है, तो अभी कॉट तो नहीं आया, तो 1 प्लस यू नो दैट tan a इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर लगा दिया। ये कहां से लिख दिया? बिकॉज यू नो दैट tan a इक्वल टू, दिस इज द आइडेंटिटी, tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a। ये आइडेंटिटी को यूज कर लिया। तो आप देखिए अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से समझिए। तो दिस इज sec a इक्वल टू अंडर रूट, आपका सेम टू सेम रहेगा, और ये स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कॉट का स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कॉट यहाँ आएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। और एलसीएम लेने से अब देखिए आप, ये तो सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म का आप एलसीएम स्क्वायर रूट ले सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 1 को पहले लिख लो, नो प्रॉब्लम, कॉट स्क्वायर ए एंड डिवाइड बाय कॉट ए। चूंकि कॉट सिंगल टर्म था, अभी स्क्वायर रूट पूरे पे लगा हुआ है, ये यहां से लेकर यहां तक है, तो कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉट ए हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप नहीं ले सकते, तो ये आपका हो गया वैल्यू दैट इज sec a। तो देखिए sec a चेंज होके कॉट के फॉर्म में आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपका जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म इज चेंज टू cot a is tan a into term of cot a। now tan a in terms of cot a। तो ये तो बहुत आसान ओरल है, आप लिखोगे सिंस tan a इक्वल टू 1 अपॉन cot a, और ये इसका आंसर ही है। आपने आइडेंटिटी लिखा और आपके पास आंसर आ गया, मीन्स tan cot में चेंज हो गया, यही आपको करना ही था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये यहाँ पे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में आता है, अक्सर नहीं आता है, कभी कभी आता है, तो वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में जो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिलेबस में है, और क्वेश्चन नंबर 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 10 पार्ट दिए हैं, और यही 10 पार्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी फर्स्ट पार्ट पूछ लिया जाता है, कभी सेकंड पार्ट पूछ लिया जाता है, कभी थर्ड, कभी फोर्थ, मतलब यही जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द ट्रिग्नोमेट्रिकल, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो वो आपको सही से पढ़ना है। तो इसको हमने इसका सोल्यूशन आपको गूगल क्लासरूम पे भेज दिया है, आप उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और इसका सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स समय से ज्वाइन करेंगे, ताकि हम लोग किसी दूसरे डिस्कशन में ना लगें और अपना। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।